CRR assist in money multiplier effect. कैसे असिस्ट करेगा? यू टेल मी. मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? M3 by M0, राइट? तो CRR का मतलब क्या हुआ? CRR का मतलब हुआ that if CRR is high, that means certain money of the bank deposits has gone to what? RBI. Yes or no? That means if certain money has gone to the RBI, then banks will loan less. The banks will loan less. If the banks will loan less, then customer के पास पैसा क्या होगा? कम होगा. If the customer has less money, that means high powered money क्या हो गया? कम हो गया. Yes or no? If the high powered money is less, what is the money multiplier का, what do you say, ratio? M3 by M0. If M0 goes down, तो मतलब क्या हो रहा है? तो मनी मल्टीप्लायर विल गो अप. किसी भी नंबर को आप छोटे नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यू विल गेट अ बिगर नंबर. यस और नो? फॉर एग्जांपल सपोज करो पहले M0 था 4, ठीक है, और M3 था 20, ठीक है. तो उस समय मनी मल्टीप्लायर क्या था? 20 by 4. दैट वाज व्हाट? 5. यस और नो? नाउ एग्जांपल करो कि CRR हैज बीन इंक्रीज्ड. If CRR has been increased, then M0 क्या हो गया मेरा? 2 हो गया. और M3 कितना हो गया? 20. Yes or no? अब क्या होगा मनी मल्टीप्लायर? 20 by 2, that is 10. Yes or no? तो ये ध्यान रखना, this ratio. Money multiplier is what? M3 by M0. And CRR helps in what? Multiplying the money. ठीक है? It helps in multiplying the money. Money multiplier में help करता है. Okay. Next point लिखो. Next point, write down. Next primary function is they provide buffer or protection during a bank run. During a bank run. What do you mean by bank run? If you guys have followed the news, आपको समझ में आया होगा कि there was one bank, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. सुना था इसका न्यूज़? कैसे सारे कस्टमर जो थे इसके पीछे उसके ब्रांच में पहुंच गए थे कि हमें अपना पैसा चाहिए वापस. Whenever most of the customers come to the bank to withdraw their money back, that is called as what? Bank run. उसको बोलते हैं बैंक रन. लिटरली मत समझ लेना कि बैंक दौड़ रहा है, वैसा नहीं है. बैंक रन का मतलब होता है when everybody is asking their own money. तो बैंक प्रेशर में आ गया, राइट? तो इस समय क्या हेल्प करेगा? इस समय CRR एंड SLR हेल्प करेगा. समझ में आया? CRR एंड SLR हेल्प करेगा. ठीक है जी? ओके. Write down this question and answer it. Analytical है थोड़ा सा. When the Reserve Bank of India reduces the SLR ratio by 50 basis points, मतलब पहले 18 था, अब क्या कर दिया? 17.5 कर दिया. 50 basis points मतलब 0.5 से reduce कर दिया. ठीक है? When the Reserve Bank of India reduces the SLR by how much? 50 basis points. Which of the following is likely to happen? It's a UPSC question. Option A लिखो. India's GDP growth rate increases drastically. Option B, foreign institutional investors may bring more capital into our country. Foreign institutional investor may bring more capital into our country. Option C, scheduled commercial banks may cut their lending rates. Scheduled commercial banks
may cut their lending rates. May cut their lending rates. And option D, it may drastically reduce the liquidity to the banking system. It may drastically reduce the liquidity to the banking system. You have 1 minute. आंसर चाहिए मुझे. Option A. Anyone with option A? Option B. एक है राहुल. Option B. Anyone else? Option B के साथ? Option C. 1 2 3 4 5. Option C के साथ 5 लोग. Option D. 1 2 3 4. ऑप्शन डी के साथ 4 लोग. ओके, देखते हैं. देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे व्हाट यू से फेस करता. सबसे पहले आई नो दैट कि लिक्विडिटी एसएलआर मेरा कितना कम हुआ है 50 बेसिस. मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले अगर 18% था, अभी ये कितना हो गया 17.5. नाउ यू गाइस टेल मी, हैव आई रिड्यूस दिस एसएलआर 18 से लेके क्या 1% कर दिया क्या मैंने? नहीं किया, राइट? अगर इतना कम करता ना तब शायद हो सकता था कि ड्रास्टिकली कोई चीज चेंज आता. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं कैसे एलिमिनेट करता? ड्रास्टिकली वाले वर्ड से. इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड, सीधा एलिमिनेट करो. समझ में आया? जब भी स्मॉल चेंजेस होंगे तब उसमें ड्रास्टिक कभी वर्ड नहीं आएगा. यू हैव टू एलिमिनेट दैट स्टेटमेंट. समझ में आया? तो स्टेटमेंट ए इज गॉन. स्टेटमेंट बी देखते हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री. क्यों लेके आएगा? पहले सोचते हैं. जब मेरा एसएलआर कम होगा, एसएलआर अगर मेरा कम होगा तो क्या हुआ? बेसिकली 17.5 हो गया, राइट? तो मतलब बैंक के पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैश हो गया. अब बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा कैश हो गया, ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा? लोन करना पड़ेगा. वो लोन करने के लिए क्या करेगा? कस्टमर को ल्योर करेगा. कस्टमर को कैसे ल्योर करेगा? इंटरेस्ट रेट कम करके. इंटरेस्ट रेट कम करके. ये सुन लो, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? बोलो, प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या बोला इसमें? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री. क्या बोला उन्होंने? दे विल ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री. ऑलरेडी बैंक जो है लोन पे लोन दिया जा रहा है, लोन सस्ते हो रहे हैं, तो वो कैपिटल क्यों लेके आएगा भाई?
क्यों लेके आएगा, यस और नो? इसको क्या करोगे आप, एलिमिनेट करोगे। समझ में आया राहुल क्यों गलत है ये? अंडरस्टूड एवरीवन? जब ऑलरेडी लोन सस्ते हो रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी इतनी बढ़ रही है, व्हाई विल वी नीड द कैपिटल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? तो ये तो हो गया एलिमिनेट। अब ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। मैंने क्या बोला है, जब भी एक्सट्रीम वर्ड आपका आ रहा है ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस क्या बोला है इसमें, लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। ये तो पहले ही गलत हो गया भाई। एसएलआर कम होने से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है किसको, बैंकिंग सिस्टम को। यस और नो? दे आर गेटिंग व्हाट, एक्स्ट्रा कैश टू द बैंकिंग सिस्टम या नॉट? जब कैश मिल रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो क्या करोगे आप, सीधा सीधा एलिमिनेट करोगे। तो बच कौन सा गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट वन। देखो इसमें क्या बोला है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एससीबीज जो हैं may cut their lending rates। देखो इट इज अ वेरी वेरी सोचा समझा स्टेटमेंट है, may cut their lending rates। एसएलआर कम हुआ है, कैश आ गया उनके पास, हो सकता है ना इस बैंक के पास एनपीए हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो बहुत सारे, अभी इनको पैसे की जरूरत थी उस समय, एसएलआर कम हुआ, हो सकता है वो पैसा उसने एनपीए में डाइवर्ट कर दिया, यस और नो, प्रोविजनिंग कर दी, या हो सकता है कि उसको लगा कि चलो ठीक है अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो लोन दे देते हैं, तो मे गिव लोन्स, यस और नो? तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट फिट हो रहा है इसमें। तो एससीबीज मे गिव लोन टू दी व्हाट, मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। लेंडिंग रेट्स कट करेंगे मतलब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, लेंडिंग रेट कम किया मतलब इंटरेस्ट रेट कम किया। समझ में आया इधर गलती जो हुई डी वाले स्टेटमेंट में, ए वाले बी वाले स्टेटमेंट में, और कौन सा सही होगा, सी वाला। ठीक है, सच एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चन करना कि अच्छा यहाँ पे अगर मेरे पास कैश ज्यादा है तो क्यों मेरे को एक्स्ट्रा कैश की जरूरत होगी, कॉमन सेंस राइट। उधर आपको क्या करना था, उसको एलिमिनेट करना था। आई होप आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। ओके, एक और क्वेश्चन है जो शायद 2020 के पेपर में आया था, मुझे वो कराना है एक बार। 2020 का पेपर है किसी के पास? आई थिंक मेरे पास है। वो क्वेश्चन मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था। लिखो, इफ आरबीआई डिसाइड्स, लिखो क्वेश्चन ये, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट मतलब वो पैसा फेंक रहा है मार्केट में, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, which of the following would it not do? Which of the following would it not do? ठीक है, क्या नहीं करेगा? पहला लिखो ऑप्शन 1, cut and optimize the statutory liquidity ratio, cut and optimize the SLR, ठीक है, cut and optimize the SLR, ठीक है। सेकेंड लिखो, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF। एंड थर्ड स्टेटमेंट लिखो, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक है। इसके बाद ऑप्शंस लिखो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर में ऑप्शंस लिखो। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी लिखो 2 ओनली। ऑप्शन सी लिखो 1 and 3 ओनली। ऑप्शन डी लिखो 1 2 3, 1 2 3। करो, 1 मिनट है, सोच समझ के, हाँ, चेन बनाना पहले।
टाइम अप. ऑप्शन ए. एनीवन विथ ऑप्शन ए? सच्ची? ऑप्शन बी? 1 2 3 और बाकी अच्छे से हाथ उठाओ यार, ऐसे वैसे मत करो, ऊपर करो हाथ. 1 2 3 4 5. ऑप्शन सी 1 2 3. ऑप्शन डी इधर घुमाओ मैम. कहाँ? विल नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. इट इज एन इजी क्वेश्चन, बताता हूँ क्यों. इधर नाल सी था. डी में कोई है? ज्ञानजीत सर? नहीं, क्या अटेम्प्ट ही नहीं करोगे? आइडिया नहीं हो रहा है. अरे ये एलिमिनेशन से हो जाता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे एलिमिनेशन से होगा. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार. एक स्टेटमेंट अगर आपने समझ लिया ना, एलिमिनेशन से हो जाएगा. देखो क्या बोला इन्होंने, आरबीआई क्या करेगा? एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी. इफ आरबीआई चूजेस एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई को मनी सप्लाई क्या करना है मार्केट में? बढ़ाना है. यस और नो? आरबीआई को क्या करना है मार्केट में? मनी सप्लाई बढ़ाना है. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से आरबीआई क्या नहीं करेगा? यस और नो? क्या नहीं करेगा? इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई वुड नॉट डू? पहला स्टेटमेंट पढ़ो, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर. एसएलआर को क्या बोल रही है? कट करने के लिए. अब अगर एसएलआर को कट करेगा, यू टेल मी, सपोज पहले 18% था, अभी 16% कर दिया, तो क्या होगा? बैंक के पास क्या होगा? ज्यादा पैसा होगा, कैश होगा. अब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा? लोन देगा. लोन देगा एट व्हाट? वेरी लो इंटरेस्ट रेट. तो बैंक कस्टमर क्या करेंगे? उस लोन को खरीदेंगे और मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. आइडियली अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है तो दिस इज अ राइट स्टेप, राइट है ना? दिस इज अ राइट स्टेप. बट क्वेश्चन क्या पूछा है? वुड नॉट डू. वुड नॉट डू. तो आप क्या करते? ऑप्शन 1 को क्या करते? एलिमिनेट करते. यस और नो? इफ यू एलिमिनेट ऑप्शन 1, यू टेल मी क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? 2 ओनली, राइट? बी इज द आंसर. सिंपल था या नहीं? इसमें सोचना ही नहीं था. बाकी चीजों में तो वो आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है. एसएलआर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको ये आराम से निकल आएगा. समझ में आया? एसएलआर का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो अभी भी, कि एसएलआर का मतलब है बैंक को कुछ पैसा या तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा या अपने पास रखना पड़ेगा. जितना ज्यादा वो पैसा अपने पास रखेगा या बैंक आरबीआई के पास रखेगा, उतना कम वो लोन दे पाएगा. जितना कम पैसा वो अपने पास रखेगा, उतना ज्यादा वो लोन दे पाएगा. ठीक है? जितना ज्यादा लोन दे पाएगा, उतना ही मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा. जितना कम पैसा दे पाएगा, उतना ही मनी सप्लाई क्या होगा? घटेगा. यस और नो? मैम क्लियर हुआ? एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई. एक्सपेंशन करना. एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, राइट? इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? रिड्यूसिंग. सिंपल. मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है. अगर मनी सप्लाई को कम करना है, व्हाट शुड बी द स्टेप्स? एसएलआर और सीआरआर में क्या करोगे? व्हाट शुड बी द स्टेप? बढ़ा दोगे, राइट? यू विल इंक्रीज एसएलआर एंड सीआरआर. तो बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास. दे वोंट बी एबल टू गिव लोन्स. इफ दे वोंट बी एबल टू गिव लोन्स, तो मनी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यस और नो? मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको घटाना पड़ेगा. यू रिड्यूस द सीआरआर एंड एसएलआर, द मनी सप्लाई विल इंक्रीज. अंडरस्टूड एवरीवन? कॉन्सेप्ट समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? बोलो. कौन कौन थे? सी के साथ कौन कौन थे? इधर 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 इधर. कौन सा? अरे बार बार नोट पे स्पेसिफाई कर रहा था मैं, इसीलिए कि नोट तो देखो भाई. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना नोट वाला, ऑलवेज सर्कल दैट नोट इन योर क्वेश्चन पेपर. क्या करोगे? सर्कल करोगे और उसके ऊपर स्टार मार दो. आप अगर वहां पे किटी, हेलो किटी बनाना चाहते हो वो भी बना दो, लेकिन वो नोट को जरूर जरूर देखो. हमेशा ये गलतियां हो जाती हैं. ठीक है? दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू, एग्जाम स्टूडेंट्स डू. नोट नहीं देखा, आता वो क्वेश्चन गलत करा है. यस और नो? गांधी सर समझ में आया? वो नोट अगर देख लेते तो ये बन ही गया था क्वेश्चन. क्या था इसमें? कुछ था क्या? बताओ. एनालिसिस तो ठीक ही किया
एनालिसिस ठीक कर दिया, नॉट देख लेते तो हो गया था ना काम, वही करना था। ठीक है, तो आज हम लोग विल कॉल इट अ डे यहीं पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। आया नहीं आया बोलो। क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इसमें द मोर द नंबर